ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਤਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 15% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਗਰਾਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 1% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਵੀਅਰਿਟੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਨੇ ਬੈੱਡਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, 104 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ, ਦੁੱਧ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਫਰੂਟ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਐਗਸ, ਮੀਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ
कि कई बारी कोई बंदा अपनी सिर्फ दुकान खोलण करके 4 पैकेट दुੱਧ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਤਾ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ और दूसरा कोई जिहड़ा है इस तरीके की जिहड़ी है कार्रवाई ना करे, क्योंकि मेन साडा पर्पस है कि लोगों की आवाजाही घटाइए और लोगों को जिहड़ा है घरां 'च ही रहन लई असीं जिहड़ा है प्रेरित करिए। और बाहर वाले आने वाले व्यक्तियों वास्ते 72 घंटे तो पहला दी नैगेटिव रिपोर्ट लाजमी कर दी गई है। जो कोई बाहरों आ रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एटलीस्ट घट्टो घट्ट 1 डोज लई होवे 2 वीक पुरानी वो लाजमी हो गया है। जो कोई बाहरों आता है सारे सरकारी दफ्तरां दे विच 50% जिहड़ी स्ट्रेंथ हैगी है वो उहदे ते वर्क करनगे और जिहड़ा है कोविड मैनेजमेंट दे नाल जिहड़े दफ्तर लगे हैगे ने उन्हां नूं एक तो छूट है वो सारे दे सारे पूरी स्ट्रेंथ च काम करनगे। 4 व्हीलर्स दे विच केवल 2 पैसेंजर्स ते नाल जिहड़ा है ड्राइवर अलाउ होएगा। 2 व्हीलर्स दे विच जिहड़ा है पिलियन राइडिंग जिहड़ी है वो बंद है। केवल एको परिवार के 2 मैंबर जिहड़े ने उहदे ते सवारी कर सकते हैं। वैडिंग सैरेमनीज फ्यूनरल्स इन्हां वास्ते जिहड़ी गैदरिंग्स हैगी है ये 10 बंदियां दी गैदरिंग की जिहड़ी लिमिट है वो फिक्स कर दी गई हैगी है। पिंडां 'च ठिकरी पहरे और नाइट कर्फ्यू नूं लागू करन लई ठिकरी पहरिਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। सब्जी मंडियां दे विच देखण च आया कि सवेरे आम लोग भी सब्जी खरीदण चले जाते हैं, जदों कि सब्जी मंडियां सिर्फ होलसेलर्स नूं देण वास्ते हैगियां ने और होलसेलर्स तो गां रिटेलर्स ने जिहड़े घरां तक पहुंच करनी है वो उत्थों माल लैणगे। लोकां नूं बेनती है कि वो मंडियां दे विच रश घटाउण और आप उत्थे ना जाण। ये जिहड़ा कारोबार सवेरे तड़कसार उन्हां नूं करन दी आग्या होवेगी, लेकिन जिहड़े है लोग आम तौर ते उत्थे जिहड़ा ना जाण उन्हां तक पहुंच जिहड़ी है जो उन्हां दा रिटेल सिस्टम बनिया है उहदे राहीं ही होएगी। किसान जथेबंदियां ते साडे धार्मिक लीडर्स नूं जिहड़ा है ये असीं इहदे विच बेनती कीती है कि अपने धरना प्रदर्शन गैदरिंग्स जिहड़ा है उन्होंने बिल्कुल घटा के जे बिल्कुल सिंबॉलिक तुसीं करना है तो 2-4-5 बंदे रह के कर सकते हैं, लेकिन इनू बंद किया जाए, धरने प्रदर्शन ना किए जान। ये एक जनहित में उन्होंने सारों को बेनती हैगी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ और उत्थे लोग जिहड़ा है मास्क पाउण तो भी गुरेज कर रहे हैं। इन्होंने यह बेनती है कि उत्थे तुसीं जिहड़ा है भीड़ घटाओ और जे कोई उत्थे जांदा है तो मास्क जरूर पावे क्योंकि बीमारी जिहड़ी है इस वेले अपने पूरा भयानक रूप लै चुकी है। साडे वल्लों जे किसी ने ऑक्सीजन जिहड़ी है वो भी ध्यान च आ रहा कि कई लोगों ने इन्हां हालातां नूं देखते हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जिहड़े हैगे ने उन्हां दी होर्डिंग करनी शुरू कर दी है और इन्हां दे प्राइसिस भी जरूरत तो ज़्यादा हाइप कर दिते ने। उन्हां वास्ते भी असी जिहड़ा है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं कि इहो जिहे किसी नूं होर्डिंग करन दी अलाउड नहीं होएगा। RT-PCR टेस्टिंग जिहड़ी है जिहड़े असी देखिया है कि तुहाडे स्ट्रीट वेंडर्स ने जिथों आम लोग आके अपना समान खरीदते हैं, चाहे वो गोलगप्पे दीयां दुकानां ने, फ्रूट वाली कोई दुकान है, उत्थे काफ़ी भीड़ भड़का हो जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स दे ते रेहड़ी वालियां दे जिहड़े है टेस्टिंग असी उन्हां नूं करन दी हदायत कीती है ताकि ये ना हो भी वो एक बंदा इन्फेक्टेड होवे और वो जिन्ने भी उन्होंने को गाहक आ रहे हैं ये बीमारी उन्होंने गाह उत्थे ट्रांसफर हो जाए। सो इस तरीके की जिहड़ी चीज़ है असीं इहनूं सख्ती नाल लागू करन जा रहे हैं। बाकी जिहड़े स्टैप्स ने जिन्हां दे उत्ते ऑलरेडी असीं पहलां दस्सिआ है, हर रोज़ 6 बजे तो जिहड़ा है अगले दिन 5 बजे तक सवेरे करफ्यू रहेगा और वीकेंड करफ्यू 6 PM शुक्रवार नूं लग के 5 बजे मंडे तक लग्या रहेगा और इसकी पूरी सख्ती दे नाल पालना की जाएगी और किसी नूं भी उत्थे घूमण फिरन की आग्या नहीं होएगी। और इस तो अलावा जिहड़े हैगे ने ट्रांसपोर्ट बसिस दे विच उहदे विच भी सारियां जिन्ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 50% कैपेसिटी तक लोगों को बैठन की आग्या हैगी है ताकि उत्थे दूरी प्रॉपर है जिहड़ी है समाजिक दूरी बनाई जा सके। हर तरह के सिनेमा हॉल्स, बार, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट कंपलैक्सिस वगैरह ये सारे के सारे बंद रहेंगे।
हर तरह के रेस्टोरेंट्स जिहड़े ने अंदर बैठ के खाने की मनाही है, सिर्फ उत्थे टेकअवे जिहड़ा है खाने का वो लिया जा सकता हैगा। और होम डिलीवरी भी रात 9 बजे तक ही अलाउड है, उस तो बाद होम डिलीवरी भी नहीं करन दी जाएगी। और जे कोई इस तरीके का कोई भी अदारा रात नूं उहदी वायलेशन करदा पाया गया तो उहदे ते सख्त कार्रवाई होगी और बकायदा उन्होंने आने वाले 3 महीने वास्ते सील कर दिता जाएगा। वीकली मार्केट्स अपनियां मंडियां वगैरह जिहड़ियां ने ये सब बंद रहणगियां। हर तरह की सोशल कल्चरल स्पोर्ट्स गैदरिंग्स के उत्ते जिहड़ा है बैन रहेगा। जे किसी ने कोई जिहड़ी है जरूरी अहम इहो जिहा है भी उन्होंने अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो डिप्टी कमिश्नर की प्रवानगी तो बिना वो फंक्शन नहीं किया जा सकता। और उस तो बाद सारिया पोलिटिकल गैदरिंग्स जिहड़ियां ने वो भी बैन कीतियां होईयां ने। और जिहड़ा है लार्ज गैदरिंग्स जिहड़े लोग जाणगे उन्होंने 5 दिन का जिहड़ा है होम आइसोलेशन होम क्वारंटाइन जिहड़ा है वो करना पएगा। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिहड़े है ये बंद रहणगे, पर इन्हां दे जिहड़े गवर्नमेंट के स्कूल्स ने उत्थे टीचर्स जिहड़े हैगे ने उन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ नूं उन्होंने अटेंड करने लई कहा गया हैगा। और इहदे विच कोशिश ज़्यादा तो ज़्यादा ही की जाए, जे साडा ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम हो सकता है तो उन्होंने प्रैफरेंस दी जाए, ताकि गैदरिंग क्योंकि जोड़े भी कोई टीचर साहबान आउणगे जाणगे वो अपने आप को एक्सपोज करनगे। ये देख के जिहड़ा है कोशिश करो कि वध तो वध ऑनलाइन टीचिंग के उत्ते ही आपां फोकस करिए। जिन्ने भी मैडिकल ते नर्सिंग कॉलेजेस ने वो खुले रहणगे, क्योंकि उन्होंने जिहड़े पढ़ते स्टूडेंट्स है उन्होंने किसी टाइम भी सानू जिहड़ा है इस कोविड नाल पैंडेमिक नाल लड़ाई करने लई लोड़ पै सकती है। हर तरह के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। प्राइवेट ऑफिसेस जिहड़े ने इंकलूडिंग इंडस्ट्री आर्कीटैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंश्योरेंस कंपनीज ये सारिਆਂ ਨੂੰ किया गया है कि अपना जिहड़ा है तुसीं वर्क फ्रॉम होम करो जिथे जिथे पॉसीबल है। इंडस्ट्रीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ फैक्ट्रीज़ ਨੂੰ आग्या दी है, उन्होंने जिहड़ा है अपने कामकाज जिथे लेबर आ रही है, लेकिन वो लेबर के कोल इंडस्ट्री के लैटर पैड के उत्ते होना चाहिए है कि किहड़े मुलाजमां ਨੂੰ उन्होंने अलाउ किया, ताकि नाकिਆਂ के उत्ते उस चीज़ ਨੂੰ दिखा सकन। जे कोई भी सरकारी मुलाजम बाहर जा रहा है, वक्रे तौर पर किसी को कोई करफ्यू पास जारी नहीं किए जा रहे, उन्होंने हदायत है कि हर एक सरकारी मुलाजम अपने पास अपना आइडेंटिटी कार्ड जरूर रखे, ताकि जदों भी उन्होंने कोई नाके ते रोकता है तो उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड अपना वो दिखा दें। वैक्सीनेशन वास्ते जिहड़ा है वो ऑलरेडी असीं सारिਆਂ ਨੂੰ कहा है कि वैक्सीनेशन हर मुलाजम अपनी करवावे। और जिहड़ा है वध तो वध इस वेले वैक्सीनेशन साडी हो रही है, लेकिन कई बार वैक्सीनेशन की सप्लाई घाट होने करके थोड़ा डिप आया। सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती है कि वध तो वध अपनी ऑक्सीजन करवाउण। माइक्रो कंटेनमेंट जोनस जिहड़े बनाए जा रहे हैं उन्होंने दे विच जिहड़ा है सख्ती दे नाल पालना करन दी हदायत की गई कि उत्ते प्रॉपर सख्ती की जाए, टू एंड फ्रो मूवमेंट ना करन दित्ती जाए और उत्थे वध तो वध लोकां दी जिहड़ी है सैंपलिंग की जाए। सरकारी दफ्तरां दे विच लोकां दे आम ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ शिकायतों के ग्रीवेंस रिड्रेसल ਲਈ उन्होंने असीं ये कह रहे हैं कि अपनी ऑनलाइन ग्रीवेंसिस ही अपन ਜਿਹੜੀਆਂ ऑनलाइन देन। जे बहुत कोई एमरजेंसी है तो फिर ही सरकारी दफ्तर च वो जान। सो ये हदायत असीं जिहड़ा है अपनी पुलिस अथॉरिटीज़ तक पहुँच कर दित्तियां ने और इन्हां दी अज तो ही सख्ती दे नाल पालना जिहड़ी है वो शुरू कर दी जाएगी। मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आने वाले 15-20 दिन एक महीना बहुत अहम है। सारे परिवार अपनी जिम्मेवारी समझन और अपने परिवारिक मैंबरों के उत्ते आपां कंट्रोल रखिए, क्योंकि इस लड़ाई दे नाल सानू हर बंदे का सहयोग चाहिए है और बिना सहयोग के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और सारिਆਂ ਨੂੰ ये बेनती है कि जे किसी का कोई परिवारिक मैंबर अपने आप नूं बीमार समझ रहा है, उन्होंने साह की कोई तकलीफ है तो घर ही बैठ के इलाज करने की बजाय अपने संबंधित हस्पतालों पहुँचो। जे किसी को कोई समर्था नहीं है और उन्होंने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जिहड़ा एंटरटेन नहीं कर रहा, कृपा करके साडे गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज अप्रोच की जाए। सो इन्हां शब्दों नाल उम्मीद करदा है कि सारे अमृतसर वासी जिहड़ा है इस चीज़ का सानू सहयोग देंगे प्रशासन नूं। और जे असीं आने वाले 15 दिन ये संयम वरत लिया और अपने ते डिसिपलिन कायम रख लिया तो ये शायद अज दे जिहड़े हालात ने अज तो 15 या 20 दिनों बाद आपां नूं बदले हुए नज़र आउणगे। धन्नवाद। जय हिंद।